کہو کیا خبر لائے ہو؟ ہاتھ میں پکڑے سگریٹ کو منہ میں دبائے وہ صوفے پر ہاتھ پھیلائے بولا تھا، جبکہ مقابل نے گردن نفی میں ہلاتے نشست سنبھال لی۔ کچھ خاص نہیں، بس اب آخری چال چلنے کا وقت آن پہنچا ہے، یہی سمجھ لیں آپ۔ ایحان اور علیشے کو جاتا دیکھ وہ سیدھا اپنے باپ کے در پر آیا تھا، جو اسی کا انتظار کر رہا تھا۔ چودھری کا کچھ علم ہوا؟ تم نے کہا تھا کہ جلد پتہ کرو گے، مگر اب تو 5-6 دن گزر چکے ہیں۔ عقیل مغل نے گھورتے جواب طلب نظروں سے اسے دیکھا۔ ویسے بھی اسے اپنے بیٹے پر یقین نہیں تھا کہ وہ کوئی بھی کام ڈھنگ سے کرتا ہوگا۔ وہ لاش ملی ہے چودھری کی، بڑی بے دردی سے مارا گیا ہے اسے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی تو اسے اطلاع ملی تھی۔ وہ یہی بتانے آ رہا تھا کہ ایحان اور علیشے کو بھاگتا دیکھا۔ یقیناً یہ اس اسفندیار کی حرکت ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ ہم تک پہنچے، ہمیں اس تک پہنچنا ہوگا۔ گہرے پرسوچ انداز میں ڈوبے وہ فیضان کو دیکھ کر بولا تھا، ایک بات اور، وہ جو حویلی میں آفیسر بن کے آیا تھا نا، وہ لڑکا، وہ علیشے کا شوہر ہے۔ اسفند نے ہی یقیناً اس کا نکاح بھی کروایا ہوگا۔ اس کی نظروں میں مجھے عجیب سی نفرت نظر آتی ہے اپنے لیے۔ یقیناً وہ سب جانتا ہے۔ جانے دو، اب چھپا کے ویسے بھی کچھ نہیں ہوگا۔ اب آمنے سامنے آ کر کھیلنے کا وقت آن پہنچا ہے۔ کال کرو اور کہو اپنے آدمی سے کہ اٹھا لے اس لڑکی کو، جب تک ہم بھی شہر روانہ ہوتے ہیں۔ فیضان کو اشارہ کرتے، سر ہلاتے وہ پرسوچ انداز میں بولا، جبکہ ریشمے کے ذکر پر فیضان نے کھل کر مسکراتے موبائل نکالتے کال ملائی۔ ریشمے، وہ جو پری کے لیے دودھ بنانے نیچے آئی تھی، اتنی صبح اسے یوں کچن میں کھڑا خیالوں میں کھویا دیکھ پرجوش ہوتے اسے مخاطب کر گئی۔ آواز پر اب ریشم نے مڑتے پیچھے دیکھا، جہاں سامنے ہی سہائے مسکراتے اس کی جانب بڑھ رہی تھی۔ کیسی ہو تم؟ اس کے گلے لگے وہ مسکراتی زور سے اسے حق کر گئی۔ ٹھیک ہوں، تم سناؤ؟ بے تاثر سے چہرہ لیے وہ ذرا سا مسکراتے ہوئے بولی تھی، جبکہ سہائے نے اس کے خوبصورت چہرے میں گھلی لالی کو مبہوت ہو کر دیکھا۔ میں بھی ٹھیک ہوں، سچ پوچھو تو بہت خوش ہوں تمہارے لیے۔ اسفندیار لالا بہت اچھے انسان ہیں، وہ واقعی تمہیں خوش رکھیں گے ریشمے۔ اس کی سنہری سرخ آنکھوں میں جھانکتے وہ یقین دہانی کروانے لگی اسے، جبکہ اب ریشم تو اس کے رات والے نئے روپ سے اب تک سہمی ہوئی سی تھی۔ چھوڑو یہ سب کچھ چاہیے تھا تمہیں تو مجھے بتاؤ، ناشتہ بنا دیتی ہوں میں۔ بات بدلتے سہائے نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ نہیں، کچھ نہیں چاہیے، وہ بس نماز پڑھی تو چائے پینے کا دل کیا، جبھی یہاں کچن میں آئی۔ تم پیو گی؟ وہ یہ نہ کہہ سکی کہ اسفند کی نظروں سے بچنے کو باہر آئی تھی، جس نے صاف آرڈر دیا تھا کہ نماز پڑھ کر واپس آؤ۔ اس لیے فوراً وہ روم سے نکل آئی تھی۔ اس کا فی الحال اس شخص سے بات کرنے یا اسے بلانے کا کوئی ارادہ نہیں۔ تو میں پری کا دودھ لینے آئی تھی۔ تم ایسا کرو، چائے ڈالو، میں پری کو بھی لے آتی ہوں، جاگ رہی ہے وہ بھی، پھر ایک ساتھ چائے پیتے ہیں۔ سہائے نے مسکراتے کہا تو اب ریشم نے ہلکی سی سر کو جنبش دی۔ سہائے کے اوپر روم کی جانب جاتے وہ چلتی باہر لان میں داخل ہوئی تھی۔ ہلکی سی صبح کی مدھم روشنی میں ہوا کے تیز جھونکے وہ پرسکون ہوتی گھاس پر ننگے پاؤں چلنے لگی۔ دل و دماغ ابھی تک الجھے ہوئے تھے۔ اچانک اسے پیچھے سے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ وہ جھٹ سے مڑی تھی کہ کون ہے وہاں؟ درخت کی اوٹ میں نیم اندھیرے میں ہر طرف پھیلی ہلکی سی روشنی پر وہ درخت کے ہلتے پتوں کو دیکھ کر تھوک نگلتے ہوئے بولی۔ کسی کی موجودگی کو محسوس کرتے وہ جھٹ سے الٹے قدموں اندر کی جانب بھاگی تھی۔ چائے کا کپ ہاتھ سے گرتے زمیں بوس ہوا تھا۔ اب ریشم نے خوف سے دھک دھک کرتے دل سے اسفند کو آواز دینا چاہی، مگر آواز جیسے حلق میں پھنس چکی تھی۔ اسے بھاگتا دیکھ ایک دم سے وہ دونوں باہر نکلے اور ایک ہی جست میں اس تک پہنچے اور اس کے منہ پر رومال رکھا۔ اب ریشم نے سرد ہوئی سنہری باہر کی جانب ابلتی آنکھوں سے خوف کے تحت اپنے منہ پر رکھے مقابل کے ہاتھ پر مکے برسانا شروع کر دیے، مگر بے سدھ ایک دم سے آنکھوں کے آگے دھند سی چھانے لگی۔ وہ لاکھ کوشش کے باوجود خود کو چھڑوانے میں ناکام رہی تھی۔ اٹھا اسے اور چل، ہو گیا اپنا کام۔ مقابل نے رومال ایک جانب پھینکا جیسے کہ اسے کہا گیا تھا۔ وہ کھینچتے ہوئے اب ریشم کا دوپٹہ اتارتے وہیں رومال کے پاس پھینک اپنے ساتھی سے مخاطب ہوا، جس نے فوراً سے اب ریشم کے بے سود وجود کو کندھے پر ڈالا۔
बड़े से बरगद के दरख्त के नीचे मुंह को आधे दुपट्टे से लपेटे खड़ी औरतें जो काफी मुत्तफिक से दिखाई दे रही थीं। एक जानिब आधे मर्द जो चारपाइयों और कुछ ऐसे ही कच्ची जमीन पर नीचे बैठे थे। सामने ही सर पर अपनी सरदारी पगड़ी पहने, सुर्खो सफेद रंगत, चेहरे पर मौजूद झुर्रियां जो उनके बुढ़ापे की निशानदेही थीं, खामोश नजरों से अपने साथ मुअज्जिजीन को देखने लगे। दिलावर खान चाहे कितने भी खफा थे, मगर बाप का साथ वो हरगिज नहीं छोड़ सकते थे। जब भी वो एक जानिब उनके दाएं ओर बैठे थे, साथ ही इर्तज़ा शाह भी मौजूद था। वो बज़ाहिर यहीं मौजूद था, मगर दिमाग अभी तक उसी जगह उसी लम्हे में अटक चुका था, मानो जब आज सुबह ही एहान ने अलीशे के साथ जाते उस पे अपने और अलीशे के रिश्ते का इंकशाफ किया था। अभी तो उसने पसंदीदगी का सफ़र तय किया था। उसे लगा था कि अलीशे असफंद यार वली खान उसके लिए एक बेहतरीन शरीके हयात साबित होगी। जब भी तो उसने रिश्ता भेजा था, मगर वो शायद भूल चुका था कि कई बार हम जैसा चाहें वैसा नहीं हो सकता। जैसा कि आप जानते हैं, आज हमने एक अहम फैसले के तहत ये पंचायत यहाँ इकट्ठी की है, तो मुझे उम्मीद है कि आप सब मेरे फैसले को तस्लीम करेंगे। एक नज़र खामोश बैठे हजरात पर डालते वो उलझे से अपने साथ बराजमान मुअज्जिजीन को देखने लगे। मैंने फैसला किया है कि अब से हमारे गांव में बहू और बेटी दोनों को बेटे के बराबर मोहब्बत और इज्जत दी जाएगी। किसी भी बेवा बच्ची के साथ ज्यादती या मारपीट नहीं होगी। बेशक हम सब अच्छे से जानते हैं कि जान लेने और देने वाला वो रब, वो गफूरुर रहीम कादिर है, मगर फिर भी हम इस हकीकत को झुठलाकर उस मासूम पर अपनी नफरत निकालते हैं जो आगे ही अपने शोहर के छोड़ जाने के सदमे से निढाल होती है। अगर गौर किया जाए तो सबसे ज्यादा नुकसान उसी बच्ची का ही तो होता है जिसकी कुल कायनात उसका शोहर उसे छोड़ चला। वो कहते झुकी आंखों से शर्मिंदा से सर झुका गए, जबकि अब उनके खामोश होने पर उनको बगौर सुनते मर्दों ने आपस में चैमिगोइयाँ शुरू कर दी। मगर ये सब आपको अभी क्यों याद आया? वहाँ मौजूद कई लोगों के दिलों में बस एक ही सवाल था, जिसे वो फौरन बिना डरे अपनी जुबान से अदा कर चुके थे। आप सबका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है, मगर वो कहते हैं ना, बाज़ औक़ात हमारे बच्चे हमें राह रास्त पर लाने का ज़रिया बनते हैं। और यही समझ लें कि मेरे पोतों ने मुझे इस बात का एहसास दिलाया है। मैं जानता हूँ आप सब भी मेरी तरह किसी बेटी के बाप हैं, तो किसी के सर दुख और तकलीफ महसूस करते हुए भी हम नज़रें चुरा जाते हैं। मगर अब से कोई भी दकियानूसी रस्म व रिवाज नहीं, बल्कि हम कुरान और सुन्नत के मुताबिक हर फैसला करेंगे। दाजान ने तमानियत भरे नर्म लहजे में कहते बात का इख्तिताम किया था। दिलावर खान सोच में मुब्तला हुए थे, जबकि इर्तज़ा शाह मुस्कुरा दिया। दूर खड़ी खानम खान ने बोतों के कंधे पर हाथ रखा था कि वो जो अपने रवैये को सोच रही थी। पल भर में चौंकते खानम खान को देखा, उनकी नज़रों में उठते सवाल, वो लब काटते नज़रें झुका गई। आप सबकी राय के मुताबिक फैसला किया जाएगा, आप सब सोच समझ कर बता दें। गांव वालों की खामोशी वो महसूस कर चुके थे, जब ही फैसला उन्हीं पर छोड़ दिया। हमें आपका फैसला मंजूर है दाजान, बेशक आप ठीक कह रहे हैं। जब ज़िंदगी और मौत का मालिक वो रब्बे गफूरुर रहीम है, तो हमें भी किसी मासूम पर जुल्म करने का कोई हक नहीं। हम सारे गांव वाले आपके फैसले से मुत्तफिक हैं। गांव के एक बड़े बुजुर्ग ने सबकी राय से दाजान को आगाह किया, जो सुनते पुरसकून से आंखों को मूंद कर अपने रब का शुक्र अदा करने लगे। बेशक आबा व अजदाद से ज़्यादा हमारे रब का फरमान हमारे लिए अफजल है। इसके अलावा एक और फैसला लिया गया है जिसमें आप सबके साथ की ज़रूरत है। इर्तज़ा शाह ने दाजान के इशारे पर बात का आगाज़ किया। मुस्कुराते चेहरों पर मुस्कुराहट सिमटी। एक नया खौफ आन खड़ा हुआ था कि अब कौन सा फैसला था। गांव के पुराने सरकारी स्कूल की तामीर व मुरम्मत के बाद उसे बेहतर बनाया जा रहा है। इसके अलावा मैंने और असफंद यार वली खान ने मिलकर लड़कियों के लिए आला तालीम के लिए यहीं गांव में कॉलेज बनाने का फ़ैसला लिया है, जो कि सबके लिए बराबर और मुफ्त तालीम फराहम करेगा। इसके अलावा वो सब औरतें जो अपनी बेवकी की वजह से अपनी औलाद की ज़रूरियात ज़िंदगी पूरी ना कर पाने के लिए परेशान हैं, उनके लिए एक अलग से फैक्ट्री तामीर की जा रही है, जहां वो अपने हुनर के मुताबिक सिलाई कढ़ाई कर सकेंगी, वो भी आज़ादी के साथ। उनके काम की माहाना तनख्वाह दी जाएगी उन्हें, और अच्छी मेहनत वाले को इनाम से भी नवाजा जाएगा।
इर्तज़ा शाह ने बात के इख्तिताम पर एक जानिब बैठी औरतों को देखा जिनके चेहरे पर एक अनोखी पुरसकून मुस्कुराहट थी, तो कई की आंखें पुरनम हुई थीं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हम जैसे गरीबों के बारे में इतना सोचने का। एक बूढ़ी बेवा खातून ने अपनी नम आंखों को साफ करते कपकपाते लहजे में कहा था। शुक्रिया मेरा नहीं, असफंदयार वली खान का करें माँ जी, ये सब कुछ उसी ने किया है आप सबके लिए। वो मुस्कुराते उनके आंसू साफ करते हुए बोला था कि दाजान ने गर्दन घुमाते इर्तज़ा शाह को बेयकीनी से देखा, जैसे यकीन ना हो कि वाकई ये सब असफंदयार ने किया था। अब चलता हूँ मैं, मुझे आज वापस जाना है। वो मुस्कुराते सबकी उलझन भरी नज़रों को देखते पल भर में वहाँ से गायब हुआ था। असफंदयार कुछ बोल तो सही असफंद, प्लीज़ तुझे क्या हो गया है? वो रेशमे को ले गया और तू ऐसे बैठा है, हमें जाना है रेशमे को ढूंढने, तू सुन रहा है ना असफंद? ज़ारून घुटनों के बल उसके पास बैठा था। वो यूं ही ज़मीन पर बेसुध सा बैठा, अपने दाएं हाथ में रेशमे के दुपट्टे को थामे खला को खाली नज़रों से घूर रहा था। ज़ारून प्लीज़ कुछ करें आप। सुहाय ने रोते ज़ारून के कंधे पर हाथ रखा। उसकी आंखों के सामने अभी भी वो मंजर चल रहा था जहाँ से उसने उन आदमियों को अब रेशम को उठाए जाता देखा था। कितनी आवाज़ें लगाई थी उसने, मगर सब बेसूद। वो पागलों की तरह भागते उनके पीछे लपकी थी, जो उसकी आवाज़ सुनते ही तेज तेज कदमों से वहाँ से आगे बढ़ चुके थे। सोहा व्हाट्स हैपनिंग? ज़ारून जो उसकी आवाज़ सुनते ही परी को कॉट में लिटाते बाहर आया था। अब उसे यूं लॉन की पिछली जानिब भागता देख दौड़ते हुए उसे बाजुओं से थाम गया। वो ज़ारून। सोहाय ने आंसू भरी शरबती आंखों से मुकाबिल को देखा जो हैरत से उसी को देख रहा था। वो रेशमे को ले गया। मैंने अभी देखा, वो दो आदमी थे, आप प्लीज़ उसे बचाएं। उसके खौफ और दहशत से कपकपाती आवाज़ में अदा किए जुमले ने ज़ारून खान को फौरन अलर्ट किया था। कुछ नहीं होगा, बस तुम्हारा वहम होगा। वो यहाँ क्यों आएगी? ज़ारून ने उसका वहम समझते उसे प्यार से बहलाया, जो शायद बहुत मुश्किल था। नहीं वो थी, आप चलें अंदर जाकर देखें, प्लीज़ असफंदयार लाला से कहें। उसके इसरार करने पर ज़ारून ने माथे पर बल डालते उसे साथ लेकर अंदर कदम बढ़ाए थे। वो जो इतनी रातों के बाद आज पुरसकून सा सोया था, अचानक से दरवाजे पर होती दस्तक पर मुंदी मुंदी आंखें खोले अपने बेड की खाली जगह देखकर माथे पर बल डाले उठा था। क्या हुआ, सब ठीक तो है? ज़ारून के पीछे रोती सोहाय को देख असफंदयार ने तफ्तीश करते पूछा था। रेशमे कहाँ है? ज़ारून ने बिना तवक्कुफ किए पूछा। असफंदयार ने उलझते उसे देख अंदर की जानिब देखा। 1 मिनट, शायद बाथरूम में हो, देखता हूँ मैं। वो कहते अंदर बढ़ा था। क्या हुआ? उसकी उड़ी रंगत देखकर ज़ारून ने पूछा। वो नहीं है, शायद बाहर होगी। अपने अनजाने खौफ से धड़कते दिल को तसल्ली देते वो बाहर की जानिब बढ़ा था। लाला, मैंने कहा था ना ज़ारून से, वो ले गए हैं रेशमे को उठाकर, मगर इन्हें यकीन नहीं हो रहा। सुहाय की कही बात उसके पांव जकड़ गई थी, जैसे वो शल हुए कदमों धड़कते दिल से किसी अनजाने खौफ के डर से भागते हुए बाहर लॉन में आया था, जहाँ भागते उसके कदमों के नीचे रेशमे का दुपट्टा आया था। बेयकीनी से वो ढह सा गया। अपना सब कुछ लुटता हुआ महसूस हुआ उसे। उसकी आंखों के गोशे नम हुए थे। अपना सब कुछ लुटता महसूस होते उसकी आंखों के गोशे नम थे, जबकि होंठ बिल्कुल खामोश, वीरान, बंजर जमीन की मानिंद हो चुके थे। जैसे मैं हिफाजत नहीं कर सका उसकी, ये आखिरी अल्फाज थे जो उसके मुंह से अदा हुए थे। उसने सख्ती से उसके दुपट्टे को अपनी मुट्ठियों में दबोचा। एक दिलदोज सी चीख बरामद हुई थी, खामोश फिजा में बिखरती उसकी अजियत में डूबी आवाज़। कई परिंदे फड़फड़ाते घोंसलों से उड़े थे। तुलुए आफताब की हल्की सी निकलती रोशनी उसके माथे पर पड़ने लगी थी, मगर वो तो जैसे एकदम से मट्टी का बुत बन चुका था, जिसके दिमाग में इज़मार खान के कहे अल्फाज थे। ये मेरी अमानत है असफंद, इसकी हिफाजत करना। वो डूबते दिल से आंखें मीच गया। मुझे माफ़ कर दो इज़मार, मैं नहीं कर सका उसकी हिफाजत, मैं नहीं बचा सका अपनी इज्जत को, अपनी बीवी को। अल्फाज टूटते उसके मुंह से जैसे बेजान होते अदा हुए थे। ज़ारून ने सुर्ख लहू रंग होती आंखों से यूं उस पागल दिखते अपने भाई को देखकर जब्त से निचला होंठ दांतों तले दबाया था।
तुम्हें उसे बचाना होगा असफन, वो बीवी है तुम्हारी, खानों की इज्जत है वो, हम मिलकर ढूंढेंगे उसे। तुमने बताया था ना कि तुमने उसके हाथ में ब्रेसलेट पहनाया है, बस उठो और चलो मेरे साथ, हमें ढूंढना है उसे। ज़ारून ने खींचते उसे बाजू से पकड़कर खड़ा किया था। उसके सीने पर अपने हाथ से दबाव बढ़ाते वो उसे देखने लगा। असफंदयार ने अपनी आंखों से बहते आंसुओं को बाजू की पुष्ट से रगड़ा था बुरी तरह। मैं कुछ नहीं होने दूंगा अब्र को, बहुत बड़ी गलती कर दी जो उस गलीज कुत्ते को जिंदा छोड़ दिया, उसे पहले ही मार देना चाहिए था मुझे। नफरत से फैजान का सोचते वो खून आलूद नजरों से फिजा को घूरते बाहर को बढ़ा था। एहान, सामने से आते अलीशे और एहान को देख ज़ारून और असफंद के कदम थमे थे। क्या हुआ, सब ठीक तो है? असफंद की सुर्ख वहशत से लबरेज आंखों को देख वो यूं उस वक्त उन्हें बाहर जाता देखकर किसी खौफ के तहत बोला, तू यहीं रहना और ख्याल रखना सुहाय और अलीशे का, हम किसी से अपना पुराना हिसाब किताब पूरा करके आते हैं। ज़ारून ने गुस्से से जबड़े भींचते कहा था। फिर दोनों ही स्पीड से गायब हुए थे कि वो दूर तक उन्हें बस जाता देखता रहा। मलगजे से अंधेरे में डूबे तारीख कमरे में वो सामने ही रॉकिंग चेयर पर झूलता पिछले 2 घंटों से टिकटिकी बांधे सामने बेड पर बेहोश पड़े वजूद को देख रहा था। हल्की सी पर्दे के सरकने से आती रोशनी जो कि मुकाबिल के माथे पर पड़ती उसके धुंधले से नीम तारीकी में नजर आते अक्स को वाजे कर जाती। वो अब सुर्ख होती आंखों से मुश्किल से आंखों को खोलने की सही करता, फिर से हाथ में मौजूद मशरूब का घूंट भरने लगा। मन सामने बेहोश पड़े वजूद में हल्की सी जुम्बिश हुई थी। वो जो बिना पलकें झिपकाए उसे यूं टिकटिकी बांधे देख रहा था, अब यूं उसके हाथ की गर्दिश और माथे पर पड़ते बलों को देख वो हल्का सा खबासत से मुस्कुराते मूंछों को ताव देने लगा था। वो बमुश्किल अपने भारी होते सर के साथ आंखों पर जोर दिए उठने की कोशिश कर रही थी। दिमाग बिल्कुल शल हो चुका था उसका, मानो काम करना बंद कर गया हो। वो दुखते सर को दोनों हाथों में थामते अब बेड पर बैठी उसे दबा रही थी कि अचानक से कुछ गैर मामूली सा महसूस करते झट से अपनी जगह से उठी थी, मगर जैसे ही नजरें आगे पीछे दौड़ाईं खौफ से एकदम से खुद को किसी अनजान जगह पर पाते बिल्कुल सफ़ेद पड़ी थी। कुछ देर पहले के मनाजिर सामने लहराने लगे। वो सर को नफ़ी में हिलाते अपने रब को याद करने लगी। नजरें दौड़ाए अपने दुपट्टे की तलाश में वो बेड पर हाथ फेरने लगी, मगर वो होता तो उसे मिलता ना। एक साथ जाने कितने वहम उसके छोटे से दिमाग में आ समोए थे। वो थूक निगलते सर को नफ़ी में हिलाते अपने घुंघरियाले सुनहरी बालों की लटों को चेहरे पर से झटकने लगी कि अचानक अपनी पुश्त पर किसी की मौजूदगी का एहसास होते एकदम से वो पलटी थी। एकदम से डरते उसके मुंह से चीख बरामद हुई। वो हाथ रखते अपनी चीख को दबा गई मुंह पर, जबकि फैज़ान खान को उसका यूं डरना बहुत भाया, वैसे ही जैसे उसकी हर हरकत उसे हमेशा से भाती थी। ओफ, तुम्हारी तो आवाज़ भी कयामत है रेशम। एकदम से बहकते लड़खड़ाते कदमों से वो उसकी जानिब बढ़ा था, जिसने उसे देखते ही फौरन गर्दन नफ़ी में हिलाई थी। जानती हो ये अंधेरा क्यों किया है मैंने? इस अंधेरे में तुम्हें महसूस करने का मज़ा ही कुछ और है। कितना तड़पाया है तुमने, हम तो तुम्हारी इस खुशबू के ही दीवाने हो चले हैं। अब रेशम का दिल किसी सूखे पत्ते की मानिंद लरज उठा था। एक खौफ, एक डर ने उसे आन घेरा। दिल ने शिद्दत से उस सितमगर को याद किया जिसने उसे पहले भी तो बचाया था ना, सिर्फ फैज़ान खान से नहीं बल्कि दुनिया की नज़रों से। तुम्हें छूने, महसूस करने का हक सिर्फ मेरा है। अब तुम मेरी थी और मेरी ही रहोगी हमेशा। उस रात की भारी सरगोशियाँ उसके कानों में गूंजने लगी। वो जब्त करने लगी, मगर फिर भी आंसू एकदम से गालों पर फिसल रहे थे। वो चाहे जितनी भी मज़ाहमत करती रही हो, मगर वो तस्लीम कर चुकी थी उसे अपने शोहर के रूप में। इसलिए तो दिल अब भी उसी को याद कर रहा था, जैसे यकीन हो कि वो उसे बचा लेगा। दूर रहो मुझसे, घटिया इंसान। उसे अपनी जानिब बढ़ता देखकर वो फौरन से बेड पर चढ़ते हुए चिल्लाई थी। आवाज़ में बेबसी और इज़्तिराब, जाने क्या क्या कुछ था। मुकाबिल सुनते ही कहकहा लगा उठा, पागल समझा है मुझे? सालों से तुम्हारा आशिक बना फिर रहा हूँ, मैं ऐसे कैसे छोड़ दूँ तुम्हें? इस इश्क ने देखो मुझे क्या से क्या कुछ करवा दिया। वो जो तुम्हारा नाम का शोहर था ना,
वो इज़मार खान, मैंने मारा था उसे। साला बड़ी आंखें दिखाता था मुझे, तुम्हारे नज़दीक आने से रोकता था, फिर ऐसी गोली मारी ठा करते, कसम से अभी तक उसकी चीख मेरे कानों में गूंजती है। सुकून देती है मुझे वो चीख। सीने पर हाथ रखे वो खोया सा आंखें बंद किए बोला था, जबकि अब रेशम ने बेसाख्ता अपने मुंह पर हाथ रखते अपनी हिचकी दबाई। कितनी अजियत थी उस सच्चाई को सुनने में। वो खुद को कसूरवार समझने लगी। असफंद यार तुम्हें छोड़ेगा नहीं, घटिया इंसान। वो बेबस सी थी। आखिर कैसे उस शैतान का मुकाबला करने की हिम्मत खुद में, जिसके इंकशाफात उसके अंदर खड़े होने की सकत तोड़ रहे थे। वो कैसे उस शैतान का मुकाबला करने की हिम्मत खुद में पाती, जिसके इंकशाफात उसके अंदर खड़े होने की सकत तोड़ रहे थे। वो मजनू क्या कर लेगा मेरा? अब वो कुछ नहीं कर सकता, बस बेगैरत बन के मुँह छुपाएगा अपना, क्योंकि उसकी इज्जत तो मेरे पास है। खानों की इज्जत, जिसे मैं अभी रोन दूंगा, नहीं, जिसे मैं अभी सराहूंगा। अब रेशम के वजूद को गहरी नज़रों से देखते वो खबासत से बोलते उसकी जानिब लड़खड़ाते कदमों से बढ़ा था, तुम कुछ नहीं बिगाड़ सकते मेरा, क्योंकि मैं अपने शोहर की हूँ। तुम अपने घटिया अज़ाइम में कभी कामयाब नहीं हो पाओगे, याद रखना ये तुम। वो हलक के बल चीखी थी। पास एक जानिब पड़े वॉज को देखते वो थूक निगलते बेड से दूसरी जानिब उतरी थी। एकदम से झटके से वॉज को उसने अपने हाथ में लिए कमर पर हाथ बांध गई। मुझे बच्चा समझा है तुमने? जानता नहीं कैसे उस इज़मार खान के इश्क में मुब्तला थी तुम, पागलों के जैसे। मैं अपने शोहर की हूँ। इस बात को हवा में उड़ाते वो उसकी जानिब बढ़ा था। अब रेशम ने एकदम खौफ से अपनी फैली सुनहरी आंखों को मीच कर खोला था। वॉज पर गिरफ्त मजबूत हुई थी। वो आगे बढ़ता झटके से उसकी कलाई पकड़ गया कि अब रेशम ने खींचते उसके सर पर वॉज मारना चाहा, जिसे उसने थाम लिया था। तुम्हें देखते ही नशा उतर गया है। अब इतना भी पागल नहीं हूँ जाने मन, जो जानता नहीं कि तुम क्या कर रही हो। झटके से वॉज को दूर फेंकते वो उसके बालों को अपनी गिरफ्त में ले गया कि अब रेशम ने फड़फड़ाते खुद को आज़ाद करवाना चाहा। मोहब्बत की ज़ुबान तो तुम खानों को समझ ही नहीं आती। फिर यही सही, उसे बालों से पकड़ते सामने करता वो खींचते अपने भारी मर्दाना हाथ का थप्पड़ उसके बाएं नाजुक रुखसार पर मारते उसे बेड पर धक्का दे गया कि वो दर्द से चीखी। एकदम से अपने मुंह में खून का जायका महसूस करते, चकराते सर से खुद में हिम्मत पैदा करते वो उठी थी, मगर सामने ही अपनी जानिब उसे बढ़ता देख अब की बार सही मायनों में उसकी रूह लरज उठी थी। नहीं, छोड़ो मुझे। वो पाँव के बल पीछे होती अपने फटे हुए होंठ से बहते खून को साफ करते उसके सामने हाथ जोड़ गई। वो मुस्कुराता हुआ फतामंदी से उसकी जानिब बढ़ा था। अचानक से अब रेशम ने पास पड़े शीशे के ग्लास को उठाया था और फैज़ान खान के कुछ भी समझने से पहले उसके मुंह पर दे मारा, जो हड़बड़ा कर रह गया। मौका पाते ही वो फौरन से भागी और लपकते दरवाज़ा खोला, जो खुशकिस्मती से नीचे से ही लॉक था। वो बिना रुके भागते बाहर दौड़ी थी। पकड़ो साली को। वो झट से बाहर निकला था। उसे सीढ़ियों से उतरता देखकर हुर्राया था। अब रेशम की सांस खुश्क हो चली थी, जबकि एक साथ जाने कितने ही मोटे हट्टे कट्टे आदमी उसके दाएं बाएं जमा हुए थे। वो प्लीज़ जाने दे मुझे। वो अपनी जानिब बढ़ता उन्हें देखकर खौफ से हाथ जोड़ते हुए बोली थी, जबकि फैज़ान मकरूह कहकहा लगाते सीढ़ियों से उतरता उसके सामने आया। कहा था ना मेरी परी, अब कोई नहीं बचा सकता तुम्हें, हर कोशिश बेकार है। चेहरे पर से बहते पानी के कतरों को अंगूठे से साफ करते वो तंज करते बोलता उसकी जानिब हाथ बढ़ा गया, जिसने डरते हुए दिल में खुदा को याद किया था। हिम्मत भी मत करना इसे छूने की, वरना ऐसी गोली मारूंगा कि मौत भी तेरी मौत पर कांप उठेगी। एकदम से किसी ने झटके से फैज़ान का बाजू मरोड़ा था। वो बिलबिला कर रह गया था, जबकि सामने खड़े असफन यार और ज़ारून खान को देख वो सर झटकते आंखों को मीचते खोलने और बंद करने लगा। दयार, एक हल्की सी कपकपाती हुई बारीक आवाज़ मुकाबिल के कानों में पहुंची थी।
एक लम्हे में आसाब पुरसकून हुए थे। वो हाथ मरोड़ते पीछे लगा गया उसे, और एकदम से अपने सामने खड़ी अब्र को इस हाल में देखते उसकी रूह तक छलनी हुई। होशियारी की तो इसे यहीं भून डालेंगे। ज़ारून ने आगे बढ़ते फैज़ान खान के सर पर गन रखते हुए कहा, जबकि फैज़ान के आदमी आगे पीछे मुंह खोले अभी तक सिचुएशन समझने की कोशिश में मसरूफ़ थे। दयार वो मुसलसल उसे खड़ी देख रही थी, जो अब उसे हिसार में लिए अपने साथ ले जा रहा था, जैसे हर बुरी नज़र से उसकी हिफाजत करना चाहता हो। गर्दन की और माथे पर रगें गुस्से से फूल चुकी थीं। वो उसे थामे बाहर आया। गाड़ी का बैक डोर ओपन करते वो उसे अंदर बिठा गया। तुम ठीक हो अब? उसके चेहरे को हाथों में भरते वो डूबते दिल से उसकी हालत पर सहम सा गया। अपनी बाएं हाथ की शहादत की उंगली से उसके होंठ को साफ करते वो पीछे हुआ था। मुझे लगा कि तुम ठीक हो, तुम्हें कुछ नहीं हो सकता। मैंने कहा था ना अब्र कि तुम पर सिर्फ मेरा हक है। कोई भी दूसरा तुम्हें छुए मैं उसका हाथ ही धड़ से अलग कर दूंगा। आंखों में अजीब सी वहशत समोई। वो उसके बालों को संवारते पीछे हुआ था। चाहे कुछ भी हो जाए अब रेशम, तुम बाहर नहीं आओगी। पास पड़ी अपनी लाइट चादर उसके गिर्द लपेटते वो उसे अपने होने का तहफ़्फ़ुज़ देते उसकी पेशानी पर बोसा देते हुए बोला था, दयार बोलो, क्या सज़ा दूँ उसे? वो उसे संजीदगी से देखते हुए बोला, जिसकी आंखों में पल भर में नफरत आ समोई थी, मार दो उसे, जिंदा मत छोड़ना उसे। उसकी आंखों में देखते वो फूलते तनफ्फुस से बोली। असफंदियार ने उसके सर पर बोसा दिया और गाड़ी से निकलते उसे लॉक किया। मारो इन दोनों, मारो इन दोनों को, ये मुझे कुछ नहीं कह सकते। मारो, मैं कह रहा हूँ, मारो इन्हें। वो अपने आदमियों को देखते हुक्म देने लगा, जबकि उसके आदमियों ने एक नज़र एक दूसरे पर फिर फैज़ान खान पर लगाई और कहका लगाते हुए ज़ारून खान के पीछे जा खड़े हुए। ये क्या कर रहे हो तुम तो मेरे साथी हो। उन्हें यूं जाता देखकर वो फड़फड़ा गया। तुम्हें क्या लगता है कि खेल तुम खेल रहे हो फैज़ान खान? खेल तुमने नहीं, हमने खेला है तुम्हारे साथ, पहले दिन से लेकर अब तक। असफंदियार ने मुस्कुराते उसकी मालूमात में इजाफा किया था, जिसे वो सुन दिमाग से सुनता सर को नफ़ी में हिला गया कि वो अपने ही बनाए खेल में खुद ही फंस गया था। नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो। वो फौरन से नफ़ी कर गया कि अचानक से पीछे से आती जानी पहचानी आवाज़ पर वो हैरत से मुड़ा था। झूठ नहीं, सच है ये फैज़ान फरीद मुग़ल। तो तुम तो अपने सामने उसे देखता वो लड़खड़ाती आवाज़ में बोला था। हाँ, मैं तो कोमा में था, फिर ठीक कैसे हो गया? खावर खान ने मुस्कुराते हुए कहा। उसके पीछे ही दो आदमी फरीद खान के हाथ बांधे ले आ रहे थे, जिसे देख अब सच में उसका दिल लर्जा था मौत के खौफ से। बाबा आप, ये सब क्या है? वो फरीद के पास जाते उससे सवाल करने लगा, जो खुद खेल पलटने पर हैरान था। तुम्हारा खेल उसी दिन ख़त्म हो चुका था जब मैंने तुम्हारी और तुम्हारे इस नाम निहाद बाप की बातें सुनी थी। पहले तो मैं तुमसे बात करना चाहता था। अपनी फूल जैसी मासूम बेटी का जिक्र तुम्हारी उस गंदी ज़ुबान से सुनते मेरा दिल चाहा था कि मैं उसे गुद्दी से बाहर निकाल दूं, मगर फिर असफंदियार मुझे पकड़ते साथ ले गया। फिर हमने वैसा ही शो किया जैसा तुमने चाहा था। मेरे ही कहने पर असफंदियार ने मेरी बच्ची से निकाह किया था। मेरी रज़ा से ये रिश्ता जुड़ा और मुझे अपने इस फैसले पर फ़ख्र है। नम आंखों से मुकाबिल खड़े अपने भतीजे को देख वो मध्यम सा मुस्कुराते हुए बोले थे, ये सब क्या हो रहा है यहाँ पर? दाजान, दिलावर खान, खानम खान, मोरू और बोहतो समेत सब घर वालों को वहाँ पाते सबने हैरानगी से एहान को घूरा था, जो अब बेनियाज बना बबल चबा रहा था। यकीनन उसने सब कुछ बता दिया था घर वालों को। जब ही हर किसी की आंख पुरनम थी। दाजान, देखें कैसे इल्ज़ाम लगा रहे हैं हम पर। आपको तो पता है ना कि ये सब झूठ है। प्लीज़ इन्हें मना करें ऐसा करने से। कुछ ना सूझने पर अब की बार फरीद खान ने दौड़ते हुए दाजान के हाथ पकड़े, जिसे वो नफ़रत से झटक चुके थे। अगर तुम लोग कभी आराम से बैठकर इस मसले को सुलझाते ना, तो आज ये नौबत ही ना आती, दाजान ने अफसोस करते कहा था, जबकि बहुतों का बस ना था कि वो उसे जान से मार देती। जो मर्जी करो इनके साथ, हमने फैसला तुम पर छोड़ा। असफंद वली यार की तरफ देखते हुए दाजान ने कहा। दाजान ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा था। एक एक करते वो सब चले गए। तुम अच्छे बाप ना बन सके, अल्लाह तुम्हारी मगफिरत करे।
وہ فالتو وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا تھا، جبھی ایک دم اپنے آدمیوں کو حکم دیا جنہوں نے ایک ہی سانس میں فرید خان کو بھون ڈالا تھا۔ فیضان خان حلق کے بل چلاتے اس کے مردہ وجود کے پاس آیا تھا۔ تیری وجہ سے میرا جان سے عزیز بھائی مجھ سے دور ہوا، ایک دم سے اس کے منہ پر ٹھوکر رسید کرتے بے دردی سے اسے دور پٹکا گیا تھا۔ وہ اسفندیار کے پاؤں میں گرا، جسے جھٹکے سے اسے کھینچ کر اس نے اوپر کیا۔ کیا سمجھا ہے تو نے؟ ہم خان اپنی عزت تجھ جیسے غدار سے محفوظ نہیں رکھ سکتے۔ تو نے خانوں کی محبت دیکھی ہے، اب نفرت دیکھ۔ اسے کالر سے جھنجھوڑتے کہتے ایک دم سے مکہ رسید کیا کہ وہ لڑکھڑاتے نیچے جا گرا۔ تیری ہمت بھی کیسے ہوئی میری ابر کو اپنی گندی نظروں سے دیکھنے کی؟ وہ اسے اپنے بھاری بوٹوں سے ٹھوکریں مارتا آدموا کر گیا، جبکہ زارون نے خون آشام نظروں سے اس کے زخمی وجود کو گھورا۔ پھر ایک دم سے بنا وقت گنوائے اسے مارتے وہ وہاں سے نکلے تھے جہاں باہر سبھی ان کا انتظار کر رہے تھے۔ آپ سب حویلی چلیں، میں اور ابر آتے ہیں۔ سب کو جانے کا حکم سناتے وہ بنا رکے گاڑی میں بیٹھتے۔ گاڑی زن سے بھگا کر لے گیا تھا۔ ایہان اور زارون نے ایک دوسرے کو دیکھ کر کندھے اچکائے، دونوں ہی نہیں جانتے تھے کہ وہ اسے کہاں لے گیا تھا۔ اترو۔ طویل مسافت کو گھنٹے میں طے کرتے وہ باہر نکلا، اسے بازوؤں کے حصار میں قید کرتے۔ اس کی سوالیہ نظروں کو دیکھ کر وہ ہلکے مسکرایا تھا۔ کہا تھا نا ایک ساتھ جائیں گے۔ قبرستان کی جانب اشارہ کرتے وہ آسودگی سے مسکرایا تھا، جبکہ ابریشم نے اس کے ماتھے پر سے بہتے زخم کو پرنم آنکھوں سے دیکھا۔ میں نے اپنا وعدہ پورا کیا ہے ازمار، تم سے زیادہ محبت دوں گا ابر کو، مگر کبھی یہ نہیں چاہوں گا کہ وہ تمہیں بھولے۔ میں چاہتا ہوں کہ یہ یاد رکھے تمہیں اپنی ہر اچھی یاد کی طرح۔ ازمار خان کی قبر پر کھڑے ہوئے وہ ابریشم کو دیکھ دل ہی دل میں ازمار خان سے مخاطب ہوا۔ دونوں نے فاتحہ پڑھی اور خوشی خوشی پرسکون انداز میں اپنی ایک نئی زندگی کی طرف قدم بڑھا دیے۔